mission goals. Please join me in welcoming Dr. Sohad Singh, a pioneering researcher in sustainable fuel research. Thank you, ma'am. Good afternoon, all. Thank you very much, Professor Dev sir, Rathod sir, the Dean and the Shri Vishwakarma Skill Institute for inviting Indian R&D Center to have a thought on what is going on in the field of hydrogen. So first of all, I should begin with my presentation will be more interactive type of things. Like why there is a need of hydrogen. Why there is a need of hydrogen is coming suddenly. Earlier, everybody knows hydrogen is abundance. It can be produced from the water also. There are so many ways to produce the hydrogen. But why suddenly our country, India, is requiring so much focus on the hydrogen? Anybody can tell? See, basically, energy transformation chahiye. Energy from various other sources is available, but it does not get to mobility or freely usable. So we need to transition this energy into a movable or a containable form. But this was available to country from the last couple of years. Why suddenly there was so much focus on the hydrogen came? Because of reducing the import bill on fuels, crude oil, and environmental usage. Well, that is somewhat correct answer, but that is not the answer. Yeah. Well, why there is a need of hydrogen is coming? Suddenly everybody is asking about hydrogen. Why? Yeah, tell me. Because जो COP26 में हमारा पंचामृत प्लेज उसमें जो 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल उसमें नो डाउट रिन्यूएबल इज डूइंग वेरी वेल इन लास्ट 10 years. अभी हमें अगर उसको और स्पीड अप करना है तो हमारे अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल है उनको हमें करना पड़ेगा. बट जो हमारा गीगावाट का जो टारगेट है 2030 का टारगेट है 500 गीगावाट उसमें हाइड्रोजन पावर प्रोडक्शन है ही नहीं. अनफॉर्चुनेटली नहीं है. But what is the need of that target? Well, why we are discussing so much hydrogen? reduce the carbon emission. वो तो सालों से था. And sir, secondly, उसमें हाइड्रोजन सबसे ज्यादा. तो पहले क्यों नहीं हुआ? sir, for geopolitical and आत्मनिर्भर अगर हम बात कर रहे हैं जी. तो we have to be self-dependent in terms of energy and that. चलो इसका एक एग्जांपल है कि ये सब चीजें स्टार्ट हुई जब हमने अनाउंस किया नेट जीरो. अब नेट जीरो सबको समझ में आता है. व्हाट इज नेट जीरो? क्या है नेट जीरो? और हमारी कंट्री का गोल क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कंट्री? 2027 we have to be net zero. But it's an ongoing process. हाँ, बिल्कुल ठीक है. हो जाएगा. तो उसके लिए हमें we have to shift on these type of energy sources so that we can meet that target. But what is net zero? I am asking the definition of what is net zero. Net zero on carbon emissions. नहीं, net zero मतलब India has as a prime minister of the honorable prime minister of India gave a target for our country that by 2070 India will be the net zero country. What does that mean to the nation? तो अभी तो हमें डेवलपमेंट करना है. नहीं मतलब why net zero का मतलब क्या है? Net zero would be carbon emissions what we are currently doing. हाँ. They would be compensated by the carbon credits from other sources. बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट करेक्ट आंसर आपने बोला. मतलब नेट जीरो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नेट जीरो का मीनिंग ये नहीं है कि मैं इन इंडिया देयर आर 18 रिफाइनरीज आर देयर. आउट ऑफ 18 रिफाइनरीज 11 रिफाइनरीज बिलोंग्स टू इंडियन ऑयल. तो वी आर एमिटिंग समथिंग और ओवर द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज गोइंग टू इंक्रीज, दैट एमिशन वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज. तो ऐसा तो नहीं 2070 में मैं बोल दूंगा सारी रिफाइनरी बंद कर दो जी, हम कार्बन एमिट नहीं करेंगे. तो हम करेंगे एमिशन ऑफसेटिंग. मतलब जो राइट वर्ड है उसके लिए एमिशन ऑफसेटिंग. मैं यहाँ एमिशन निकाल रहा हूँ, एमिशन ऑफसेट करूंगा. तो 2070 का जो टारगेट कंट्री का दिया, सिमिलरली इन इंडिया इंडियन ऑयल ने जो अपना टारगेट दिया वो 2046 का टारगेट दिया. इंडियन ऑयल टारगेट ऑफ नेट जीरो बाय 2046. नेट जीरो का मीनिंग क्या है कि व्हाई देयर इज अ नेट जीरो रिक्वायरमेंट इज कमिंग कि मैं एमिशन ऑफसेट करूंगा. अब एमिशन ऑफसेट मैं कैसे कर सकता हूँ? व्हाट आर द वेज फॉर दैट? थोड़ा फंडामेंटल है पर समझना चाहिए कि व्हाट इज द नीड ऑफ हाइड्रोजन. हमने एमिशन ऑफसेटिंग बोला कि भैया आज की डेट में इंडियन ऑयल के पास 11 रिफाइनरी हैं 18 में से. आज भी मैं 92 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ CO2 प्रोड्यूस करता हूँ 11 रिफाइनरी से. आज से मैं 2046 में 92 की जगह मैं हो सकता है 300 मिलियन मैट्रिक टन CO2 प्रोड्यूस करूँ. हाउएवर वो 300 मैट्रिक टन को मैं एमिशन नेट जीरो कैसे करूंगा?
in various ways. First is हाँ establishment में भी कोई green technology adopt करके हमारे carbon emission कोई, which is not possible. वो पॉसिबल ही नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। यस The other way, suppose we are emitting X amount of carbon जी annually. That should be compensated by, जैसे कहीं में wind power energy plant लगाया है, solar. वो थोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। मतलब सिंपल एक लेमैन के तरीके समझिए कि मेरे को एमिशन ऑफसेट करना है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट लेमैन तरीका मेरे को क्या करना चाहिए? Simple example would be एक पेड़ हमने काटा, बिल्कुल सही। 4 पेड़ लगा दिए। लेमैन लैंग्वेज, आप पेड़ लगा दीजिए। मैं इतना एमिशन एमिट कर रहा हूँ, मैं एक खेत खरीदूं और बहुत सारे पेड़ लगा दूं। मैं मतलब इंडियन ऑयल आईओसी की बात करता हूँ मैं, तो इतने सारे पेड़ लगा दूं, पर क्या इतने सारे पेड़ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो डेट इज अ फर्स्ट वे इज अ पेड़, जो सर ने भी बोला, फर्स्ट है पेड़। व्हाट वाज सेकंड वे? कैसे कर सकता हूँ सेकंड तरीके से? और कोई तरीका? Energy systems that deploy less carbon. यस, वेरी गुड। मतलब जो हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे बॉयलर्स हो गए या हमारे रिएक्टर्स हो गए, उनकी मैं एफिशिएंसी इंक्रीज कर दूं। आज के डेट में 40% एफिशिएंसी है, उनकी 30% एफिशिएंसी है, तो आई कैन यूज अ मोर ऑप्टिमल, मोर एफिशिएंट वे ऑफ द इक्विपमेंट्स। तो जैसे कि जैसे 60% 70% एफिशिएंसी होगी, तो मेरा एमिशंस और कम हो जाएगा उसमें। और क्या तरीका है तीसरा? तो 2 तरीके हो गए। थर्ड में फ्यूल्स यूज करें जो ग्रीन हाउस गैसेस कम emit करते बिल्कुल सही। वो कौन से फ्यूल होते हैं? हैं। तो ये hydrogen हाँ बिल्कुल, ये दैट इज द नीड ऑफ हाइड्रोजन। दैट इज द नीड ऑफ हाइड्रोजन। व्हाई वी रिक्वायर हाइड्रोजन? इसीलिए हुआ कि जो तीसरा भी तरीका है नेट जीरो करने का, बायोफ्यूल्स में यूज करो। बायोफ्यूल्स को यूज करना शुरू कर दो। बायोफ्यूल्स के साथ साथ फोर्थ वन इज हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई तो इतना जो हल्ला हाइड्रोजन का हो रहा है कि भाई ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन पहले नहीं था। इंडियन ऑयल इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रोजन। इंडियन ऑयल आज से हाइड्रोजन नहीं कर रहा, 1955 से कर रहा है हाइड्रोजन। बट अभी जब से नेट जीरो की रिक्वायरमेंट आई है, जैसे नेट जीरो आया, तो नेट जीरो मैं कैसे अचीव करूंगा? तो नेट जीरो का तरीका है कि मैं ट्री प्लांटेशन करूं, फॉरेस्टेशन जिसे बोलते हैं। नंबर 2 एफिशिएंसीज बढ़ाऊं। नंबर 3 में बायोफ्यूल्स यूज करूं। और नंबर 4 इज आई कैन यूज हाइड्रोजन। तो इसीलिए मैं हाइड्रोजन पे इतना ज्यादा फोकस है कि भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और जैसे जो एमिशंस होते हैं, वो पता व्हाट आर स्टेज 1 एमिशन, व्हाट आर स्टेज 2 एमिशंस, व्हाट आर स्टेज 3 एमिशंस, वो भी होते हैं। वो क्या है एमिशंस? जैसे मेरी 11 रिफाइनरीज हैं, उसमें जब हम नेट जीरो की बात करते हैं, तो स्टेज जैसे जो 11 रिफाइनरीज से मेरा CO2 इस साल निकला, वो 92 मिलियन मेट्रिक टन निकला फ्रॉम द 11 रिफाइनरीज। तो उसमें जो 92 मिलियन मेट्रिक टन है, वो स्टेज 1 एमिशंस भी हैं और फिर स्टेज 2 एमिशंस भी हैं। एप्पल ने अभी आईफोन, जो आईपेल हो गया आईफोन वाला, एप्पल ने बोला है मैं 28 या 29 में मैं नेट जीरो हो जाऊंगा। तो उसने भी उसमें कौन से स्टेज 1 स्टेज 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेज 1 एमिशंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेज 2? कोई आइडिया? नहीं आइडिया? जो हम CO2 एमिट करते हैं, इंडियन ऑयल जो एमिट करता है, कोई भी एमिट करता है, स्टेज 1 वो एमिशंस होते हैं जो मैं अपनी फ्यूल यूज करके, जैसे बायोफ्यूल या हाइड्रोजन या नेचुरल गैस जो भी यूज करके, जो हीटिंग के लिए या कूलिंग के लिए जो एफिशिएंसी यूज कर रहा हूँ, उससे जो एमिशंस निकल रहा है, दीज आर नोन एज नेट जीरो एमिशन। जो मैं डायरेक्ट मतलब सिस्टम में डाल रहा हूँ, डायरेक्ट हो रहा है। नेट जीरो स्टेज 2 एमिशन जो होते हैं, वो होते हैं जो मैं किसी से, मैंने सपोज करो मेरी मथुरा में रिफाइनरी है, मैंने यूपी गवर्नमेंट से बिजली ली, तो यूपी गवर्नमेंट बिजली बनाने के लिए कहीं पर भी तो प्लांट लगाया होगा ना उसने, वहां पर भी CO2 एमिट कर रहा होगा, तो उसको भी नेट जीरो करना है मेरे को। तो मेरा टारगेट क्या, मेरा जो 92 CO2 आता है, वो 96% मेरे स्टेज 1 एमिशंस है इंडियन ऑयल के, और ऑलरेडी 4% मेरे स्टेज 2 एमिशंस है। तो जब 2047 में नेट जीरो की मैं बात करूंगा, दैट मीन्स मेरे स्टेज 1 प्लस स्टेज 2 बोथ द एमिशन शुड बी जीरो। बिल्कुल ठीक, वही है। एप्पल ने जो बोला है, एप्पल का भी आया था स्टेटमेंट, एप्पल बोलता है स्टेज 3 भी होता है उसका, जो थर्ड पार्टी वेंडर से जो चार्जर वार्जर एडाप्टर लेता है, बोला उसको भी मैं जीरो कर दूंगा। तो ये मतलब दिस इज द स्टोरी व्हाई वी आर फोकसिंग, व्हाई इंडियन ऑयल इज मोर फोकसिंग ऑन द हाइड्रोजन फ्यूल। तो ये नेट जीरो से मैं ऐसे लिंक कर, इस लिंक विद द नेट जीरो ओनली, तो टारगेट है जो नेट जीरो से टारगेट है। नेक्स्ट करना मैडम, दिस इज ये इंडेक्स है कि ग्लोबल कंटेक्स्ट क्या है, एवरीबॉडी नोज। नेक्स्ट करेगा ये हाइड्रोजन, द कैटलिस्ट फॉर अ जीरो, मतलब एवरीबॉडी नोज कि इनिशियली वी स्टार्ट विद द वुड ओनली, देन फिर कोल पे जाए, फिर ऑयल है, फिर नेचुरल गैस है, देन हाइड्रोजन। तो वी आर मतलब स्टिल मूविंग टुवर्ड्स हायर। मतलब अभी कोई बता सकता है व्हाट इज द कैलोरी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन? व्हाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब क्यों इतना हाइड्रोजन फोकस हो रहा है? व्हाई मतलब मेगा जूल पर केजी बता देंगे क्या? मैकेनिकल इंजीनियर्स को मेगा जूल ज्यादा समझ में आता है, एनर्जी कहते हैं। यस अच्छा, एक जस्ट मतलब ये जो रॉकेट जाता है
इसरो भेजता है, नासा भेजता है, उसमें कौन सा फ्यूल यूज होता है? वाई हाइड्रोजन यूज करते हैं, क्यों? लाइट लाइट तो नहीं चाहिए, नहीं है। More energy compared weight. हाँ मतलब वो जो सर वो इसकी कैलोरी वैल्यू बहुत हाई है। और व्हाट इज द कैलोरी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन? Roughly about 7,000. सर वो किलो कैलोरी हम लोग समझ में नहीं आएगा, मेगा जूल वाले हैं हम लोग एनर्जी इंजन वाले लोग हैं तो एनर्जी ज्यादा समझ में आता है। मतलब इसके जैसे पेट्रोल डीजल की कैलोरी वैल्यू कितनी होती है? हम लोग पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, गाड़ियों में डलवाते हैं, कार्स में चलता है, तो कितनी कैलोरी वैल्यू रहती है? नहीं, जैसे पेट्रोल डीजल का 44 के करीब मेगा जूल पर केजी, डीजल का 45 मेगा जूल पर केजी, सीएनजी का अराउंड 50 रहता है मेगा जूल पर केजी, और हाइड्रोजन 120 मेगा जूल पर केजी, 120 मेगा जूल पर केजी। तो मतलब 2.5 टाइम्स आपको ज्यादा एनर्जी कंटेंट मिलता है, इसीलिए वो रॉकेट में यूज किया जाता है, बिकॉज एनर्जी कंटेंट इज वेरी हाई। और पहले क्या फ्यूल यूज होता था रॉकेट में? कौन सा फ्यूल है जो सबसे ज्यादा एनर्जी दे सकता है? Basically, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, राइट सर। मतलब जैसे नासा वासा जब स्टार्ट किया, आई वेंट टू नासा, मैं ह्यूस्टन गया था 23 में, कोविड के जस्ट बाद। तो वहाँ नासा का पूरा वो है, जगह है, मतलब प्रॉपर लैब्स है, ह्यूज लैब्स आर देयर। और अमेरिका को बोलते हैं ना, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बनाने में बहुत बड़ा योगदान नासा का भी है। नोबडी थिंक्स अबाउट रॉकेट छोड़ना है हवा में, उस टाइम में उन लोगों ने रॉकेट को चलाया और बनाया। जो उसमें जो फ्यूल यूज होता था, पहले यूरेनियम यूज होता था, फिर धीरे यूरेनियम से वो थोरियम पे आए, बिकॉज एटॉमिक फ्यूल्स की कैलोरी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, फिजन रिएक्शन होती है, अगर अनकंट्रोल रहती है। इसलिए जितने एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते थे सबको रेडियोएक्टिव प्रॉब्लम होती थी, इसलिए वो बाद में बहुत सारे इश्यूज आते थे उसमें। अभी नाउ डेज एवरीबॉडी शिफ्ट टुवर्ड द हाइड्रोजन फ्यूल, बिकॉज उसकी कैलोरी वैल्यू बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, ये ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी, वाई मतलब व्हाट आर द एडवांटेज विद द हाइड्रोजन फ्यूल? लाइक दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, मतलब देयर आर मल्टीपल जनरेशन ऑप्शंस आर अवेलेबल, स्केलेबल एप्लीकेशन लाइक इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव यूज के लिए। स्टेबिलिटी इज वेरी मच स्टेबल। एमिशंस एवरीबॉडी नोज, व्हेन हाइड्रोजन को पानी से रिएक्ट कराएंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, ओनली वाटर प्रोड्यूस होगा। और इसका क्या ऑपरेशन एडवांटेज है कि रेंज और इसका रिफिलिंग टाइम काफी कम है। समबडी आस्क्ड वन क्वेश्चन कि विच वन इज मोर सेफर, तो ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन का टाइम नहीं आया, और वी आर नॉट हैंडलिंग द हाइड्रोजन। जितनी भी रिफाइनरीज होती हैं, मतलब रिफाइनरीज में वी आर हैंडलिंग द हाइड्रोजन फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ 70-75 ईयर्स हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोजन। और अभी हमारे इंडिया में कौन सा एमिशन नॉर्म्स चल रहा है? विच एमिशन नॉर्म्स आर प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री? BS6। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BS6? मतलब BS6 पेट्रोल डीजल है और BS4 पेट्रोल डीजल है, उसमें क्या अंतर था दोनों में? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? basically emissions. वो सर वो तो इंजन पार्ट पे हो गया, व्हीकल पार्ट पे, मतलब वो तो जो ऑटो टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा है, उसके पार्ट। मेरे पार्ट पे क्या है? एज ए रिफाइनर, आई एम द रिफाइनर। You have to supply that fuel. तो उसमें मेजर BS4 और BS6 में अंतर क्या था? सल्फर, बिल्कुल सही। 50 ppm सल्फर था BS4 में, पेट्रोल डीजल में। BS6 में 10 ppm मैंने कर दिया। ठीक है, अब बेसिक क्वेश्चन, तो सल्फर रिडक्शन में करता हूं, वो हमारी रिफाइनरी में टेक्नोलॉजी है, दैट इज नोन एज डी हाइड्रोजन डीसल्फराइजेशन। वी कॉल इट DHDT, डी हाइड्रोजन डीसल्फराइजेशन। व्हाट डज इट मीन? कि जो कच्चा तेल है, क्रूड है, जितना उसे आप हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे, उतना हाइड्रोजन की अफिनिटी उसमें सल्फर खींचता है, H2S बनाता है। तो जब मैंने बोला कि मैंने BS4 से BS6 किया, मतलब मैंने बोला इंडियन ऑयल ने, तो इंडियन ऑयल, टोटल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैव इन्वेस्टेड अराउंड 75,000 करोड़ ऑफ रुपीज। तो 75,000 करोड़ जो मैंने लगाए, वो ओनली हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट्स लगाए, रिफॉर्मर्स लगाए बड़े बड़े, और कुछ नहीं किया। मोर द हाइड्रोजन, जितना मैं क्रूड से रिएक्ट कराऊंगा हाइड्रोजन को, उतना उसका सल्फर कम होता जाएगा। 50 ppm 10 ppm मेरे को जाना है, तो मेरे को वहां पर स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी है, SMR जो स्टेब्लिश टेक्नोलॉजी, उससे मैं हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता हूँ, उससे उसका सल्फर को रिड्यूस करता हूँ। तो ये इसलिए मैं, मतलब हाइड्रोजन को वी आर हैंडलिंग फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, नो प्रॉब्लम विद हाइड्रोजन, सेफ्टी का इश्यूज नहीं है। और जैसे सीएनजी और रिफिल करवाते हाँ, हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको गाड़ी से उतरना होता है, वो हाइड्रोजन में भी सेम रहेगा, वो उतरना रहेगा। हाँ हाँ, मतलब जैसे इनफैक्ट जो एक नासा की DOE लैब है, US की DOE लैब है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की लैब से, सांडिया लेबोरेटरीज करके है, उन्होंने क्या किया, 3 कारें ली, एक गैसोलीन की कार ली, एक डीजल की कार ली, और एक हाइड्रोजन की कार ली, और तीनों को जलाया उन्होंने। तो दे फाउंड कि जो गैसोलीन डीजल था, वो गाड़ी पूरी जल गई, और जो हाइड्रोजन की कार थी उसमें कुछ नहीं हुआ, बिकॉज इट्स लाइटर देन एयर। वो आप उसे उड़ने देंगे, हवा में जान देंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी में कोई डैमेज नहीं हुआ।
और दिस वाज मतलब पब्लिश डेटा है, सांडिया लेबोरेटरीज ने पब्लिश भी डेटा किया कि सेफ्टी के रिगार्डिंग हाइड्रोजन इज मच सेफर देन द गैसोलीन डीजल। हाँ, एक्यूमुलेट करेंगे तो फिर देन इशू है उसमें। अच्छा, अब बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं। हमने सल्फर के लिए इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, दे हैव इन्वेस्टेड 75,000 करोड़ रुपीस। व्हाई सल्फर इज बैड? corrosive to human organs as well. सर बट हमारा जो एग्जॉस्ट में जो एमिशंस बोलते हैं हम लोग, एक मैंने फ्यूल के बताया, एमिशंस पे हमने रिड्यूस करे। अनफॉर्चुनेटली हम सल्फर को मेजर नहीं करते एग्जॉस्ट में। मैं सल्फर कितना भी डाल दूं कोई मेरे पे लिमिट नहीं। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एमिशंस नॉर्म बना रखे हैं, एक फ्यूल हो गया, व्हीकल में फ्यूल गया, एमिशंस में निकला, तो उसमें जो रेगुलेटेड एमिशंस हैं ओनली CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, टोटल हाइड्रोकार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, पार्टिकल मास है, पार्टिकल नंबर है, दैट्स ऑल। सल्फर नहीं है उसमें। सल्फर सर ऑक्सीजन के साथ उसका ऑक्साइड बनाता है। और नहीं बनाता, नहीं होता वो। व्हाई सल्फर इज बैड? सर ने सही बोला, कोरोसिव है वो, राइट आंसर है। बट व्हाई सल्फर इज बैड, मतलब सल्फर को क्यों फोकस किया, सल्फर को कम क्यों करना चाहा? मतलब वी कॉल्ड इज BS5 हमने इंप्लीमेंट नहीं किया कंट्री में, यूरो 5 जो बोलते हैं, वी लीव फ्रॉग द BS5 एमिशंस, वी डायरेक्टली जंप टू BS6। तो हमने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ सल्फर रिडक्शन करने के लिए, क्यों? मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर उसको सो सल्फ्यूरिक एसिड से एसिड रेन होगा। सर एसिड रेन अब नहीं होता, एसिड रेन 90s में होता था जब हम छोटे थे, पढ़ते थे। अब एसिड रेन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। सर हाइड्रोजन सल्फर मैडम रिएक्शन जब होता है ना इंजन के अंदर, मतलब टोटल हाइड्रोकार्बन फ्यूल है, HC है, उसमें काफी ज्यादा रिएक्शंस होते हैं, जल्दी इतना ज्यादा नहीं हो पाता है वो टेम्परेचर पे ना। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होने की चांसेस है। तो सर जब रेस्पिरेटरी के जो सर ने ही बोला, मतलब कोरोसिव है रेस्पिरेटरी, तो भारत सरकार ने उसको ये नहीं समझा कि मैं H2S को मेजर करूं। भारत सरकार तो मतलब समझ सकती है ना एमिशंस को, व्हाई नॉट इट इज कम्स अंडर रेगुलेटेड एमिशंस कैटेगरी। और ओनली 10 ppm, 10 ppm का ppm मतलब 1 लाख में 10 के पता भी नहीं। मतलब ये थॉट ऑफ द डे है, सोचिए इसे, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट इसका एक और एडवांटेज है सेफ्टी का, मैडम पीछे आएगा, कि हाइड्रोजन इज सेफ, मतलब 14 टाइम्स लाइटर देन एयर है, डिस्पर्स क्विकली, इट्स वेरी सेफ, कोई इसमें इशू नहीं है। और इसका लो रेडिएंट हीट है, हमने इसे चूल्हे में भी यूज करके देखा, घरों में यूज करके देखा, तो जो हीट होती है रेडिएंट हीट, मतलब मैं चूल्हा यहाँ पर है, कोई लेडी कुक कर रही है तो रेडिएंट हीट कितनी आएगी, तो इसकी लो रेडिएंट हीट है, लेसर चांस ऑफ सेकेंडरी फायर। जैसे CNG की रेडिएंट हीट ज्यादा है, LPG की भी ज्यादा है, इसकी कम है हाइड्रोजन की, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट कम ऑन। These are the why India is betting, मतलब जो सर ने भी बोला कि इम्पोर्ट ड्यूटी